क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सारे? यस डॉक्टर सुकृत, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको, अगर आप कंफर्टेबल है अभी तो? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, यू आर म्यूट। Okay, so very warm welcome to all of you from me. Welcome to the district governor. Welcome to Mr. Kishore Verma, who's the multiple diabetes district chief, and all senior dignitaries and line members. A warm welcome to all of you from me in Uttarakhand. We are also there for a big health camp here, doing it for a big NGO here, Mount Valley Development Association, and this is being sponsored by the LIC of India. And I welcome Neeraj Lal, who's the CEO of Apollo Hospitals in Gujarat. Very good morning. And I welcome also our guest speaker Om Lakhani, who's a top endocrinologist in Gujarat, and he works in Zydus Hospital in Ahmedabad. So a warm welcome to all of you, and let me ask Neeraj to take off and inaugurate this session from Lakhani. Thank you very much, Dr. Sukrit. One fine day while I was traveling to the hospital, you called me and said we are doing a diabetes awareness campaign. I think it is a very good initiative, and this word and statement is very nice. No diabetes to no diabetes. So I think that is very, very important. Though we are busy in our life, but we, I think, forgot how we maintain ourselves, what to do to maintain. So, and I am representing Gujarat. I heads Apollo Hospital in Gujarat, and we are known as a sweet people in the country. So if you see diabetes, we are the diabetic capital of the country. So I think we have to manage diabetes. In order to manage, we should know what diabetes is all about. So I think expert is with us. That is the same reason. I think there's so many specialties are there in medicine, you know, right from cardiology to nephrology. But I think there is only one vertical which people talk about. Therefore, I think Apollo across the country, they've started Apollo Sugar Clinics. So I think what we eat, what we say, and how we maintain ourselves, it is very, very important. And this is a word of pro health checkups. I think these days we maintain our, we maintain our houses, we maintain our vehicles, but we are not taking care of our health. So it is advisable if we all take a health checkup at least once in a year. We get to know what is our status, and then we can talk forward. And thanks to Loin Club and International District 321A2, I think everybody is here in the morning, right from their home and offices. I welcome you all, and all the best for this diabetic awareness campaign. And I request Dr. Sukrit, whatever we can do as Apollo from Gujarat, we are here to partner with you and support this campaign. Thank you very much. Thanks, Neeraj. Thanks a lot for your wonderful words. And before we take off, मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डायबिटीज एक प्राइम प्रोजेक्ट है लायंस क्लब इंटरनेशनल का, और इसमें हम सबको बेसिकली हाइब्रिड कैंप्स करने चाहिए. डायबिटिक अवेयरनेस एक कंपोनेंट है जो ऑनलाइन प्रोसेस, बेसिकली दिल्ली के सारे क्लब्स को मैंने एक ऑनलाइन लिंक भेजा था, जिसमें सारे आप मेंबर्स को इंश्योर करें कि वो उसमें डेटा डालें और अपने डायबिटीज रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करें. और इसी से क्लब्स की रेटिंग होती है, और इसी से क्लब्स को स्कोरिंग होता है, और इसी से आपको अवार्ड्स मिलेंगे. और डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड पाने के लिए जरूरी है कि सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट इसमें मिलके इसको ऑनलाइन कैंपेन को सॉलिड बनाए. इसके अलावा वी कैन डू हाइब्रिड कैंप, जैसे हम आज यहाँ कर रहे हैं उत्तराखंड में. बेसिकली ये ब्लड शुगर डिटेक्शन है और साथ में डायबिटिक अवेयरनेस भी है, तो दोनों चीजें वी विल डू. एंड मैं अभी पिक्चर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, एंड आई एम श्योर अदर people in the Lions Club would initiate and do all these hybrid camps. So welcome Dr. Om Lakhani, and I would like you to take over. और फिर इस टॉक के बाद में we will correct. Thank you so much, Dr. Supreet Sharma.
And good morning to everyone. And thank you to Dr. Neeraj Lal sir for the introduction. And thank you to the Lions Club for having me. If you give me permission, I'll start sharing my screen. Yes, sure. Please do that. Rajesh, please take over. Yes, please, Dr. Lakhani, you can start now. And I request, before Dr. Lakhani start, I request everyone, please mute yourself. बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, तभी आप सबको बोलने का एक मौका दिया जाएगा. अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जो माइक्स हैं उनको प्लीज ऑफ रखिए. थैंक यू. यस, कैरी ऑन डॉक्टर लखानी. Yeah. Just give me a second. Yes, please. It says host has disabled participant sharing. Can you enable sharing for me? Yes, I can. Wait a moment. Yes, you can try now. Yeah, it works. Yeah, is my screen visible? Yes, your screen is visible, Dr. Lakhani. Oh, thank you so much. Thank you. So once again, good morning everyone. And आज हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आप अगर देखेंगे मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में होगी, बट मैं हो सकेगा उतना इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का यूज करूंगा. सो मेरा नाम डॉक्टर ओम लखानी है. आई एम अ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम जाइडस हॉस्पिटल इन अहमदाबाद. और आज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ 3-part सीरीज, जिसमें हम पहले डायबिटीज को समझेंगे, डायबिटीज क्या है उसके बारे में समझेंगे. सो आज के सेशन में हम खाली डायबिटीज, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस, ये हम समझेंगे. हमारा सेकंड सेशन होगा जिसके अंदर हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तब हम डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, वेट लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये सब चीजें हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, नर्व्स के बारे में, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो आज हम बेसिकली मेनली डायबिटीज क्या है उसको हम समझेंगे. सो आज दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज डिस्कशन. आई एम श्योर वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो इन द एंड. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको लिख के रखिए, तो हम बाद में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. सो बेसिकली डायबिटीज क्या होता है, और बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि डायबिटीज वैसे ब्रॉडली 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस, राइट. अब डायबिटीज इंसिपिडस बहुत रेयर कंडीशन है, इसके बारे में हम आज नहीं डिस्कस करेंगे. हम आज जो फोकस करेंगे वो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में. तो डायबिटीज बेसिकली ये होता है, एक जमाना था जब जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पेशाब बार बार होता है, यूरिन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है. और उन्होंने ये भी देखा कि जो यूरिन होता है उसके आजू बाजू में चींटियां क्रॉल करती है, राइट. सो ये एंड्स मूविंग अराउंड द यूरिन. सो उन्होंने सोचा कि शायद ये यूरिन में कुछ ऐसा पदार्थ है, कुछ है जिसके वजह से चींटियां उससे अट्रैक्ट होती है. एंड दे रियलाइज के जो ये प्रोबेबली शुगर है जो यूरिन में निकल रहा है. तो मेलाइटस का मीनिंग होता है स्वीट, राइट. मेलाइटस होता है स्वीट. सो जो यूरिन, diabetes mellitus basically means sweet urine, right. That's the simple term. So पुराने जमाने में जैसे जब बहुत sophisticated जो हमारे पास अभी लैब के इन्वेस्टिगेशंस हैं ये अवेलेबल नहीं होते थे, तो वो बेसिकली यूरिन के अंदर शुगर कैसा है उसके बेसिस पे दे कुड से कि इनको डायबिटीज है कि नहीं. सो बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस इज नथिंग बट स्वीट यूरिन. दैट इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मतलब यूरिन जो स्वीट है, राइट. ये है. जबकि इंसिपिडस का मीनिंग होता है ब्लांड. ब्लांड मतलब जो स्वीट नहीं है. सो बेसिकली जो यूरिन स्वीट है वो डायबिटीज मेलाइटस है, जो यूरिन स्वीट नहीं है वो डायबिटीज इंसिपिडस है. बट हम जैसे मैंने बताया डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम मेनली डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, अब जैसे मैंने बताया पुराने जमाने में यूरिन शुगर हम टेस्ट करते थे, बट वो कंसेप्ट अभी काफी आउटडेटेड हो गया है. यूरिन शुगर का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. हम बेसिकली डिस्कस करते हैं ब्लड शुगर, राइट. ब्लड में जो शुगर है, ब्लड का जो शुगर होता है वो होता है ग्लूकोज, राइट. सो जो ब्लड में जो शुगर होता है
वो ग्लूकोज होता है। हम ग्लूकोज क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ग्लूकोज का इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ब्लड शुगर का बढ़ना, या इन अदर वर्ड्स ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना। सो अगर इफ ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। आपका जैसे अगर ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको आप हाइपरटेंशन कहते हैं या बीपी की बीमारी कहते हैं। आपका अगर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कहते हैं, इसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। वैसे ही अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, राइट। हम विल ट्राई टू कीप दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, सो आप कहेंगे कि चलो ब्लड शुगर बढ़ गया उसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो अब नॉर्मल क्या होता है, राइट। नॉर्मल शुगर क्या होता है? सो अगर हम, आप में से बहुत सारे लोग डायबिटीज हो गए या किसी के फैमिली मेंबर को डायबिटीज होगा, तो आप जानते हैं कि जब भी हम शुगर चेक करते हैं तो हम शुगर 2 टाइम पे चेक करते हैं। एक हम मॉर्निंग में फास्टिंग शुगर चेक करते हैं भूखे पेट, और दूसरा हम जनरली खाने के बाद का शुगर, जनरली लंच के बाद, डिनर के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद हम शुगर को चेक करते हैं। तो अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से नीचे है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से नीचे है तो वो परफेक्टली नॉर्मल है, इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। और अगर आपका ब्लड शुगर खाने के बाद का 140 से नीचे है तो आप उसको बिल्कुल ही नॉर्मल कहेंगे, तो इसको हम नॉर्मल ब्लड शुगर कहेंगे। बहुत सारे लोग, आप ये भी जानते होंगे, एक टेस्ट होता है HbA1c, राइट। HbA1c को ऑल्सो दे कॉल इट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, राइट। इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। सो ये एक चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ऐसा है जो 3 मंथ्स का आपको 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है, राइट। सो दिस HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो पिछले 3 महीने का आपको एवरेज शुगर आपको दिखाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो अगर आप डायबिटीज आपको है तो मैं कहूंगा कि आप बाकी टेस्ट कराएं ना कराएं, बट ये HbA1c का टेस्ट बिल्कुल कराएं, बिल्कुल कराएं। 100% आप HbA1c का टेस्ट कराएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैसे आप जानते हैं, अगर आप, बहुत सारे आप में से कोई क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो आप ये जानते हैं कि क्रिकेट में हम बैट्समैन की एवरेज कैसी है वो देखते हैं, है ना। हम ये नहीं देखते कि आज उसने कैसा परफॉर्म किया या कल कैसा परफॉर्म किया। ऐसा हो सकता है कि शायद विराट कोहली एक मैच में 0 करे, राइट, बट उसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली खराब बैट्समैन है। हम देखते हैं कि विराट कोहली का ओवरऑल एवरेज कैसा है। सो विराट कोहली हैज ओवरऑल एवरेज ऑफ मोर देन 50, राइट। दैट मींस कि वो हर मैच में अराउंड एवरेज 50 से ज्यादा स्कोर करता है। सो वैसे ही हम कहते हैं कि विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, या फिर सचिन तेंदुलकर है जिनकी एवरेज 50 से ऊपर है तो आप कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज अ गुड बैट्समैन क्योंकि उसकी एवरेज अच्छी है। हाँ, हो सकता है कभी कुछ मैच में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन किए हैं और कुछ मैच में उन्होंने खाली 1 रन 2 रन किए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक आध 2 मैच के बेसिस पर हम किसी को जज करें। वैसे ही अगर हम डायबिटीज को देखते हैं, ब्लड शुगर को देखते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि एवरेज ब्लड शुगर कैसा है, और ये एवरेज ब्लड शुगर आपका HbA1c से हमें मालूम होता है। और HbA1c जो है अगर आपका 5.7 के नीचे है, अगर 5.7 के नीचे है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। सॉरी। सो अगर आप कोई टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप ये HbA1c का टेस्ट जरूर से कराएं, और आप HbA1c टेस्ट अगर आपका 5.7 के नीचे है तो आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि आपका शुगर बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब आता है प्री डायबिटीज क्या होता है। तो प्री डायबिटीज जो है, जिसको हम बहुत सारे लोग कॉमन टर्म में बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरा डायबिटीज बॉर्डर पे है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, तो इसको हम मेडिकल भाषा में प्री डायबिटीज कहते हैं, राइट। सो जो प्री डायबिटीज है वो ब्लड शुगर आपका 100 से 125 के बीच में है, फास्टिंग शुगर, और अगर आपका खाने के बाद का शुगर 140 से 200 के बीच में है तो इसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। और अगर हम जो एवरेज शुगर की बात करते हैं तो अगर वो एवरेज शुगर आपका 5.7 से 6.4 के बीच में है, 5.7 to 6.4, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी प्री डायबिटीज। तो इसको हम प्री डायबिटीज स्टेज में कहते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज हो गया है, लेकिन उसका मतलब है कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप थोड़ा कॉशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको डायबिटीज होने से हम रोक सकते हैं। तो फिर आता है डायबिटीज क्या है। सो डायबिटीज, अब ये अगर आप देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप
चेक कर सकते हैं कि आपका अगर ब्लड शुगर डायबिटीज के रेंज में है कि नहीं। सो डायबिटीज मेलाइटस क्या है? तो अगर हम 4 पैरामीटर देखें, सो जैसे 4 पैरामीटर, अगर फास्टिंग आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 126 से ज्यादा है, खाने के बाद का शुगर आपका अगर 200 से ज्यादा है, आपका जो एवरेज शुगर है, हम जो एवरेज शुगर की कब की बात कर रहे थे, HbA1c, अगर वो 6.5 से ऊपर है तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो ये पर्सन हैज डायबिटीज मेलाइटस। और जैसे आप डॉक्टर सुप्रीत शर्मा इज गॉन फॉर अ कैंप, तो अगर कैंप में अगर वो बहुत सारे पेशेंट का ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, अगर किसी का शुगर 200 से ऊपर आता है और साथ में उनको डायबिटीज के सिम्टम्स भी हैं, तो इस कंडीशन को भी हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। सो फिर दोबारा से मैं कहूंगा, फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126, खाने के बाद का शुगर 200 से ऊपर हो, HbA1c 6.5 से ऊपर हो, या फिर कोई भी शुगर 200 से ऊपर हो लेकिन साथ में अगर डायबिटीज के सिम्टम्स हो, तो इसको हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज के क्या सिम्टम्स हैं हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, तो ये भी हम आप देखते रहेंगे। सो विल डिस्कस दिस पॉइंट आल्सो। सो ये एक अगेन सिंपल स्क्रीनशॉट है जो आप उसको अगर लेना चाहें, तो HbA1c टेस्ट अगर देखें 6.5 से ऊपर है तो इसको डायबिटीज कहते हैं, 6.4 टू 5.7 टू 6.4 है उसको प्री डायबिटीज कहते हैं, एंड लेस देन 5.7 इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। एंड अगर हम खाने के बाद की शुगर अगर फास्टिंग शुगर देखें 126 इज डायबिटीज, 100 टू 125 इज प्री डायबिटीज, एंड लेस देन 100 इज नॉर्मल। और खाने के बाद की शुगर 200 से ऊपर हो तो इसको डायबिटीज कहेंगे, 140 टू 199 इज कंसिडर्ड प्री डायबिटीज, और 140 के नीचे को नॉर्मल कहेंगे। सो इसका आप अगेन अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको आप सेव कर सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो आप ये जानना आपको जरूरी है। जैसे मैंने बताया, अब मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो हूं, बट साथ में आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। सो हमने एक छोटा सा ऐप बनाया है जिसमें आप खुद चेक कर सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है कि नहीं। सो ये ऐप है विच इज कॉल्ड द डू आई हैव डायबिटीज मेलाइटस ऐप। तो आप ये बड़ा सिंपल सा ऐप है, तो अगर आप इसको आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली आपकी डिटेल्स डालनी है, आपको HbA1c का वैल्यू आपका डालना है, आपका फास्टिंग शुगर का वैल्यू, खाने के बाद का शुगर का वैल्यू डालना है, और अगर आपको कोई सिम्टम्स है कि नहीं ये आप डालेंगे। और अगर आप इनपुट करेंगे तो आपको ये लास्ट में रिजल्ट बताएगा कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। सो ये आप ऐप हमारा सिंपल सा है, इट्स अ वेब ऐप। सो आप कोई भी ब्राउजर वगैरह में यूज कर सकते हैं। सो आप दिस इज द QR कोड। सो अगर इसको आप सेव कर सकते हैं, QR कोड से आप डू आई हैव डायबिटीज का ऐप जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आप ये वैल्यूज याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट वेदर यू हैव डायबिटीज और नॉट। तो इसका दिस विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू। सो अगर आपने जैसे डॉक्टर नीरज लाल सेड अबाउट के आप रूटीनली आप अपने टेस्ट कराएं, हेल्थ चेकअप कराएं। अगर हेल्थ चेकअप आपने कराया है और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं है या डायबिटीज के रेंज में है, तो आप ये ऐप का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द डू आई हैव डायबिटीज ऐप। अब बहुत सारे लोग हैं जो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो और कहीं पे कुछ और वैल्यूज देखी थी। सो आप ये समझें कि डायबिटीज का डायग्नोसिस और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो उसका जो टारगेट है ये अलग अलग है। ये फॉर सम रीजन ये दोनों चीजें अलग हैं। सो एक होता है डायग्नोसिस और दूसरा है अगर आपको ऑलरेडी है तो उसका ट्रीटमेंट का टारगेट, राइट। ये दो चीज अलग है, राइट। सो डायग्नोसिस के कट ऑफ्स थोड़े अलग हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े अलग हैं, और टारगेट के जो वैल्यूज हैं वो थोड़े अलग हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे टाइम लॉट्स ऑफ टाइम पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो ऐसे वैल्यू बताए थे और आप डायबिटीज डायग्नोसिस के अलग वैल्यू हैं। तो ये थोड़ा जानना आपको जरूरी है कि अगर आपको ऑलरेडी शुगर है, ऑलरेडी ब्लड शुगर है, तो ऑलरेडी डायबिटीज की बीमारी है, तो उसमें जो टारगेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो हम टारगेट करते हैं कि आपका ब्लड शुगर 80 टू 130 के बीच में फास्टिंग शुगर रहे। आपका खाने के बाद का शुगर हम जनरली 180 से नीचे टारगेट करते हैं, और आपका जो एवरेज शुगर होता है HbA1c वो हम 7 के नीचे टारगेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7% वैल्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको डायबिटीज हैं और आपको कोई टेस्ट करवाने हैं तो आप एक टेस्ट हमेशा जरूर से कराएं, दैट इज HbA1c। आप अपने लैब से डिस्कस करें। ये बहुत ही सस्ती टेस्ट है, इट टेक्स अबाउट 300-400 रुपीज ओनली।
बट ये सबसे जरूरी टेस्ट है, सबसे जरूरी टेस्ट है डायबिटीज के लिए। और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, आपका ये HbA1c वैल्यू है वो 7% के नीचे होना चाहिए। अगर आपका HbA1c 7% के नीचे है तो यू कैन वेरी सेफली से कि आपका डायबिटीज इज वेल अंडर कंट्रोल। बट अगर वो 7% से नीचे नहीं है तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपके डॉक्टर से दोबारा से मिलके उनसे डिस्कस करके ट्रीटमेंट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो 7% रहता है आपका HbA1c टारगेट। सो ये जानना बहुत ही जरूरी है और इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। सो डायबिटीज मलाइटस के भी कुछ सब टाइप होते हैं। ब्रॉडली देखें तो डायबिटीज मलाइटस के 4 टाइप होते हैं। एक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें टाइप ए टाइप बी नहीं, ये टाइप ए टाइप बी नहीं होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, कुछ और प्रकार के डायबिटीज होते हैं। और जो प्रेगनेंसी में जिनको डायबिटीज होता है, जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको प्रेगनेंसी के वक्त भी अगर शुगर बढ़ता है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। सो ब्रॉडली देखें तो डायबिटीज मलाइटस के 4 प्रकार हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। और हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा आपको ये भी समझाएंगे कि ये डायबिटीज के प्रकार क्या होते हैं और ये क्यों जानना जरूरी है। ठीक है, सो ये जैसे मैंने बताया, यू हैव टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज। सो ये हम डिस्कस करेंगे। ये अगेन ये स्लाइड हम दोबारा से आएंगे इस पे, ये बहुत जरूरी है। सो जो कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है, जो बहुत सारे लोग है ना, आप में से बहुत सारे लोगों को अगर डायबिटीज होगा तो मोस्टली 90% जो केस होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होता है, राइट। सो जो सबसे कॉमन टाइप का डायबिटीज है, राइट, जो बहुत सारे लोगों को है, मेजॉरिटी जो पब्लिक को जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। हमेशा याद रखिए टाइप 2 डायबिटीज, राइट। सो अगर आपको कोई कहता है कि अगर आपकी उम्र अबाउट 50-60 ईयर्स हैं और अगर आपको डायबिटीज है, सो मोस्ट लाइकली यू हैव टाइप 2 डायबिटीज, राइट। ये टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन टाइप का डायबिटीज होता है, ये कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है। सो तो आप कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेनली जब मेजॉरिटी कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज है, राइट। सो ये है टाइप 2। और जो दूसरा जो डायबिटीज होता है, जो जनरली बच्चों में ज्यादा होता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज डायग्नोस होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। सो थोड़ा हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज होता क्यों है, राइट। क्यों होता है डायबिटीज, ये बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, राइट। सर ये मुझे डायबिटीज क्यों हुआ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि डायबिटीज क्यों होता है और डायबिटीज कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, प्रिवेंशन के बारे में हम बाद में दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही डिस्कस करेंगे, इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी आज के सेशन में हम ज्यादा प्रिवेंशन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम पहले आज समझेंगे कि डायबिटीज क्यों डेवलप होता है, राइट। सो एक कहावत है मेडिकल फील्ड में कि जो आपके जो जेनेटिक्स होते हैं, आपकी जो जीन्स हैं, राइट, सो जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। सो कोई भी डिजीज होता है वो 2 कारण से होता है। एक तो जेनेटिक कंपोनेंट जो आपका डीएनए है, आपका जो आप कह सकते हैं आपके नसीब में जो लिखा है, राइट। सो आपके नसीब में जो लिखा है वो आपके जेनेटिक्स हैं। बट जो आप जो एनवायरनमेंट है, जैसे आप क्या डाइट लेते हैं, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आप किस प्रकार से आपका वेट मेंटेन करते हैं, आप लाइफस्टाइल आपकी कैसे मेंटेन करते हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। सो अगेन लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स जो है, जो आपका जीन है, इट इज द गन, राइट, इट इज अ लोडेड गन। सो ये एक बंदूक है जिसमें गोली है, बट एनवायरमेंट है वो एक है ट्रिगर, राइट। सो एक बंदूक जो है, अगर उसमें बुलेट है लेकिन आप वो पड़ी हुई है, अगर कोई ट्रिगर नहीं दबाता तो गोली है वो नहीं निकलती है। इसी तरह जेनेटिक्स जो है वो लोडेड गन है, बट जो एनवायरमेंट है वो ट्रिगर है, राइट। सो डायबिटीज अगर आपको है तो वो जेनेटिक कंपोनेंट है। हाँ, थोड़ा आपका नसीब है, डीएनए है, जीन्स हैं, आपके पेरेंट्स के जो आपने इनहेरिट किया है वो है। सो 50% कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स का होता है, बट 50% कंट्रीब्यूशन आपका भी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हम जीन्स को तो हम बदल नहीं कर सकते हैं, बट हम हमारे एनवायरमेंट को या हमारे लाइफस्टाइल को हम बिल्कुल बदल सकते हैं। सो इस पे हम फोकस करें, वो जरूरी है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।
सो डायबिटीज क्यों होता है? सो जैसे हमने पहले बताया ग्लूकोज, सो ग्लूकोज जो है वो आपके बॉडी का फ्यूल है। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही बॉडी को रन करने के लिए जो फ्यूल है वो ग्लूकोज होता है। सो ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी। और हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये पैनक्रियास एक हार्मोन बनाता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। आप इंसुलिन के बारे में बहुत सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने इंसुलिन के बारे में जाना भी होगा, कुछ लोग इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेते होंगे, राइट? सो इंसुलिन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंसुलिन का काम क्या होता है? सो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को, सो ग्लूकोज आपका ब्लड में होता है, ये ब्लड से ग्लूकोज जो आपके सेल्स होते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो इंसुलिन का होता है। सो इंसुलिन जो है एक तरह से आप उसको ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं, या एक ड्राइवर कह सकते हैं, या कैरियर कह सकते हैं, तो या ट्रक कह सकते हैं ना। सो इंसुलिन ऐसी चीज है जो ग्लूकोज जो आपका फ्यूल है, वो आप पेट्रोल के ट्रक आपने देखेंगे ना जो पेट्रोल कैरी करते हैं, वैसे ही इंसुलिन जो है वो जो आपका फ्यूल है, पेट्रोल है, आपका ग्लूकोज है, उसको वो सेल के अंदर कैरी करता है। सो अगर आपका ये इंसुलिन जो है, या तो आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, या तो आपके बॉडी में इंसुलिन है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये दोनों ही कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं, राइट? सो ये हम ये स्लाइड से देखेंगे। तो अगर कुछ बॉडी में खाते हैं, अगर आप शुगर वाली चीज लेते हैं, या अगर आप स्टार्च किस में होता है? राइस में, पोटैटो में ये स्टार्च होता है, ब्रेड में, ये सब स्टार्च वाली चीजें हैं। तो आप ये जब खाते हैं इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, तो ये आपके बॉडी में एंटर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो इट गेट्स ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। सो जो ग्लूकोज मैंने बताया वो आपका बॉडी का सेल है, बॉडी का मेन फ्यूल है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में जमा होता है। अब आप जानते हैं जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, आपने देखा। फिर हमारे बॉडी में पैनक्रियास होता है जो इंसुलिन बनाता है, और ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर जाने में मदद करता है। सो दिस इज द हाउ नॉर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस। और अगर ये इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है या इंसुलिन नहीं है बॉडी में, तो उस केस में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने को हम डायबिटीज कहते हैं। तो तब डायबिटीज के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। ये डायबिटीज के सिम्टम है, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, जिसको हम इंसुलिन डेफिशिएंसी कहते हैं, या तो आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे समझे कि इंसुलिन जो है, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन आपके एक तरह से इंसुलिन आपका ड्राइवर है, राइट? एक आपका गाड़ी का ड्राइवर है जो आपकी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, जो आपकी चीजें ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। सो अगर आपके पास आपके ड्राइवर छुट्टी पे है, राइट? आपका ड्राइवर नहीं है, तो नेचुरली आपकी गाड़ी कौन चलाएगा? नहीं चला पाएगा, राइट? और वैसे ही अगर आपका जो ड्राइवर है वो छुट्टी पे नहीं है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। सो इसी तरह से इंसुलिन एक तरह से ड्राइवर है जो आपके ग्लूकोज का मूवमेंट करने में मदद करता है। लेकिन अगर ये या तो है ही नहीं, या तो फिर है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है, ठीक है? सो हम दोबारा से आते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज पे। तो जैसे हमने डिस्कस किया, टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो लेस कॉमन होता है, खाली 10 to 20% केस में ही टाइप 1 डायबिटीज होता है, बाकी मेजॉरिटी केस में टाइप 2 डायबिटीज होता है। सो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसको पुराने जमाने में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते थे। ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट? ये बहुत ही अलग टाइप का डिजीज है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ योर पीपल को, जिनको आप जानते हैं जिनको डायबिटीज है, उनको टाइप 1 डायबिटीज नहीं होगा, उसको मोस्टली टाइप 2 ज्यादा कॉमन होता है। टाइप 1 होता है बट बहुत कम, रेयर होता है। और जनरली टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होता है। सो जनरली 5 to 15 ईयर्स एज पे टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? बेसिकली बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो खुद के बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, और कुछ खुद के बॉडी के जो सेल्स होते हैं जिसमें इंसुलिन बनता है कि उसको डैमेज करता है, और उसके वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से डायबिटीज होता है, राइट? पर जो आपके केस में जो डायबिटीज है, जो आप कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। और टाइप 2 डायबिटीज जनरली एडल्ट्स में होता है, बड़ों में होता है, और वो 30 साल की उम्र के बाद कॉमन होता है। आजकल जो हमने 20 साल की एज पे भी हम डायबिटीज देखते हैं, बहुत कॉमन है, बट आजकल 30 साल जनरली स्पीकिंग 30 ईयर्स के बाद कॉमन होता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर बॉडी इंसुलिन बनाता है लेकिन
जो इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। सो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो जैसे कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज जो आपको होता है वो टाइप 2 डायबिटीज है, राइट। सो जैसे मैंने बताया, ये आपका बॉडी का ये पैनक्रियास है, जो एक सेल है जो हार्मोन बनाता है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में मदद करता है। सो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उस सिचुएशन में इंसुलिन नहीं बनता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है, और जो हम कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज हैं उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। सो अगर आज आप आज के लेसन्स में दो चीज जानेंगे, एक तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो कॉमन है, राइट, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको एक टेस्ट कराना है HbA1c, और ये टेस्ट आपको लेवल जो है उसको 7% के नीचे रखना है। ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। अगर ये इतना भी जानते हैं तो यू आर बेटर देन 90% ऑफ द पीपल हु हैव डायबिटीज। अगर आप इतना आपके बॉडी के बारे में जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, सो ये होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये हमने डिस्कस किया। मैं एक और चीज आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। आपने बहुत सारे लोगों ने सुमो रेसलर देखे होंगे ना, सुमो रेसलर, राइट, जो बड़े मोटे होते हैं, जापानीज रेसलर होते हैं। सो सुमो रेसलर अगर आपने देखे होंगे तो बहुत ही वो लगते हैं कि बहुत ओबीज है ना, बहुत मोटे हैं, वेट ज्यादा है, तो आप सोचेंगे कि इनको डायबिटीज, इनको हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। बट वेरी इंटरेस्टिंगली सुमो रेसलर्स को डायबिटीज नहीं होता है, दे डोंट डेवलप डायबिटीज, राइट, जबकि उनका वेट ज्यादा है, दे डोंट डेवलप डायबिटीज। ये क्यों है? सो ये इसलिए है कि जो आपका जो फैट होता है, चर्बी है ना, फैट होता है, वो एक स्किन के नीचे फैट होता है, इसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, जो स्किन के नीचे है, जो आपकी चमड़ी के नीचे है। और दूसरा जो होता है वो बॉडी के अंदर फैट होता है, उसको कहते हैं विसरल फैट, राइट। इसको हम विसरल फैट कहते हैं, जो बॉडी के अंदर होता है, राइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप फ्यूचर में आप इसके बारे में ज्यादा सुनेंगे। जो बहुत सारी चीजें हैं, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का फेलियर है, ये सभी चीजें विसरल फैट के वजह से होता है। तो जिनके बॉडी में विसरल फैट का प्रमाण ज्यादा होता है उनको ये सब डिजीज ज्यादा होते हैं। स्किन के अंदर जो फैट होता है वो भी, अगर जनरली क्या होता है, जिनको स्किन का फैट ज्यादा होता है उनको भी विसरल फैट ज्यादा होता है, बट ऐसे जरूरी नहीं है। जैसे सुमो रेसलर जो होते हैं उनके अंदर सबक्यूटेनस, स्किन के नीचे का जो चर्बी है, फैट है, वो ज्यादा होता है, बट अगर आप उनका सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे तो देखेंगे कि उनका जो विसरल फैट होता है बहुत कम होता है। जबकि आप इंडियन देखेंगे, हम है ना, इंडिया वाले इंडियंस, हमारे अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सबक्यूटेनियस जो फैट होता है, जो स्किन के नीचे फैट होता है, वो कम होता है, बट जबकि जो बॉडी के अंदर फैट होता है, विसरल फैट होता है, वो ज्यादा होता है। और इसलिए हमारे इंडियंस में डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट। जापानीज के प्रमाण में हमारे पॉपुलेशन को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं तो बहुत पतला हूं तो मुझे तो डायबिटीज नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो बॉडी के अंदर की जो चर्बी है उसके वजह से डायबिटीज होता है, ना कि जो स्किन के अंदर की चर्बी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। सो डायबिटीज के क्या सिम्टम होते हैं, क्या चीजें होती हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि डायबिटीज है। बट मैं ये आपको, जैसे डॉक्टर नीरज लाल जी ने बताया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि बहुत सारे लोगों को सिम्टम नहीं होते हैं। ये डायबिटीज का डायग्नोसिस होना सिम्टम होने से पहले अगर हो तो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you diagnose diabetes mellitus before the symptoms develop, right? This is very important. और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एनुअल या रेगुलर हेल्थ का चेकअप कराएंगे। अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा, पहले से पता चल जाएगा कि डायबिटीज आपको है कि नहीं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम्स भी होते हैं। सो क्या सिम्टम्स हैं? अगर आप में से किसी को भी ये भी सिम्टम है तो आप आज ही जाके आपके नजदीक से डॉक्टर को मिलें और आप डायबिटीज की जांच करवाएं। सो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के? तो बहुत सारे लोगों को जो जेनिटल एरिया है वहां पे खुजली होती है, इचिंग होता है। बहुत सारे पेशेंट, हमारे इंडियन पेशेंट बहुत कॉमन आते हैं कि सर हमें खुजली होती है, पेशाब की जगह पे खुजली होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर पेशाब की जगह पे बार बार खुजली होना, ये डायबिटीज होने की निशानी है, ये डायबिटीज होने के चांसेस हैं।
अगर आपको वेट लॉस हो रहा है, जैसे आपका वेट 100 किलो था और आपके 3 महीने में आपका वेट 94 kg हो गया, तो ये 6 kg वेट लॉस इन 3 months इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये अनइंटेंशनल वेट लॉस जिसको कहते हैं, अगर ये है तो ये डायबिटीज की निशानी है। अगर पेशाब बार बार जाना पड़ता है, बहुत सारे पेशेंट को रात को उठ के पेशाब जाना पड़ता है 3-4 बार, तो आप बिल्कुल डायबिटीज का चेक करवाएं। अगर पेशाब के आजू बाजू, ये पुराने जमाने में जैसे मैंने बताया ना, अगर पेशाब के बाजू बाजू में अगर चींटियां एंड स्क्रॉल कर रही है, तो ये बॉस आप बिल्कुल चेक करें, ये डायबिटीज की निशानी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो ठीक से हील नहीं होती है, राइट, ठीक से रूज नहीं आती है। तो वुंड हीलिंग अगर होता है तो अगेन ये डायबिटीज हो सकता है। बहुत सारे लोगों को स्किन के इन्फेक्शन बार बार होते हैं, फॉलिकुलाइटिस जिसको कहते हैं, स्किन में इन्फेक्शन अगर होता है, या फिर पैरों में झंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन पैरों में, तो ये सब डायबिटीज होने की निशानी से। अगर आपको ये इसमें से अगर कोई सिम्टम है ना, तो आज ही जाके आपके डॉक्टर से मिलें और डायबिटीज की जांच करवाएं। बिकॉज जैसे आपने बताया, नो डायबिटीज इज नो डायबिटीज। इफ यू नो मोर अबाउट डायबिटीज, तो आप बिल्कुल डायबिटीज को टैकल कर सकते हैं और आप उसको अच्छे टाइम पे उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो डायबिटीज जानने के लिए आप कौन से टेस्ट करवाएं, आप अगेन ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो आपको क्या कराना है, आपके लैब से कांटेक्ट करना है और आप उनके लिए मुझे फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, खाने के बाद का शुगर कराएं, एवरेज HbA1c कराएं, किडनी का टेस्ट कराएं, क्रिएटिनिन टेस्ट कराएं और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल। सो ये सब टेस्ट आपको बिल्कुल कराने की जरूरत है, और ये टेस्ट आप कराएं डायबिटीज अगर है कि नहीं जानने के लिए। अगर ये टेस्ट कराते हैं, जैसे हमने आपको कट ऑफ्स बताए, अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो आप ये कट ऑफ्स को लेवल को चेक करके जान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। और अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहें तो बिल्कुल आप ये चीजें करें। किन लोगों को डायबिटीज की चेक करानी चाहिए, तो अगर आप 40 साल से ऊपर है तो बिल्कुल आपको, अगर सिम्टम्स हो या ना हो, आपको डायबिटीज के बारे में चेक कराना जरूरी है। अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है और आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, या तो फिर आपके सिम्टम्स हैं डायबिटीज के जो हमने डिस्कस किए, तो अगर ये सिचुएशन में आपको डायबिटीज के बारे में स्क्रीनिंग होना चाहिए। और अगर आपको सिम्टम, कोई भी सिम्टम, जैसे हमने बताया, अगर जेनिटल एरिया में इचिंग होता है या वेट लॉस होता है, तो ये सब सिचुएशन में आपको डायबिटीज के बारे में चेक करना जरूरी है। सो डायबिटीज के लिए किस डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? सो डायबिटीज के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है, आप ऑब्वियसली आपके फिजिशियन जो होते हैं, फैमिली डॉक्टर को बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहें तो डायबिटीज के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, राइट? सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज अ specialist for diabetes, and this is somebody you can consult if you want to know about diabetes mellitus. So आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहें तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, जो एक डायबिटीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट? सो आपके एरिया में आप गूगल पे कर सकते हैं, या तो फिर आप बड़ी हॉस्पिटल जैसे आपके अपोलो शुगर है या जाइडस है, यहाँ पे आप जाके आप पूछ सकते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन है और उनको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, सो आज के सेशन में मेनली यही है, बट कुछ और चीजें मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। मैं आपसे विल ट्राई टू बी इन टच। सो हमने एक इनिशिएटिव चालू किया था, दिस इज कॉल्ड एज diabetesonline.in। आप ये वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है dromlakhani.com, सो यू कैन गो टू दिस साइट ऑल्सो, यू विल फाइंड इस पे भी कुछ बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। diabetesonline.in पे आप जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। आप जब खोलेंगे तो इस तरह से आपको वेबसाइट दिखेगी। ये वेबसाइट में हमने एक इंटरेस्टिंग चीज ये की है कि वी हैव ट्राइड टू हैव समथिंग कॉल्ड अ सेकेंड ओपिनियन। आप इस पे वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको एक सेकेंड ओपिनियन का सेक्शन दिखेगा, राइट? सो सेकेंड ओपिनियन के सेक्शन पे आप जा सकते हैं, और ये सो आप इसमें एक सेकेंड ओपिनियन वाला सेक्शन है, आप इस पे जा सकते हैं। ये एक चैट बॉट है, तो आप इस पे कुछ इंफॉर्मेशन डालें। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है और आप चाहते हैं कि एक स्पेशलिस्ट से आप सेकेंड ओपिनियन लें इसके बारे में, इट्स फ्री ऑफ चार्ज, कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, वी आर नॉट केप्ट एनी कॉस्ट फॉर दिस। तो इसमें आपको सिंपल चीज ये करनी है कि आपको दो ही चीज करनी है। आपको खाली आपका जो शुगर के रिपोर्ट्स हैं, आपके जो ब्लड के रिपोर्ट्स हैं, उसको आपको अपलोड करना है,
और आपको प्लस आपका जो करंट प्रिस्क्रिप्शन है, जो आप दवाइयां ले रहे हैं, उसके बारे में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम आपको विल सेंड यू बैक, we'll analyze your reports and we'll send you back, we'll see your prescription and we'll give you some suggestions of what you can do. आपके डायबिटीज को बेटर कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो ये हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. It's like I said, completely free of charge. It's like a service which we are trying to give you. So it is the website, like I said, is diabetesonline.in. So you can visit this to get more information about your current, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है. इस पे हमने एक और सेक्शन डाला है विच इज कॉल्ड नॉलेज बेस, जिसमें आप डाइट के चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन आल्सो डाउनलोड अदर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन लुक एट अदर वीडियोस ऑन डायबिटीज के बारे में कुछ और चीजें जान सकते हैं. सो ये दीज आर माय डिटेल्स. अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं या नजदीक में रहते हैं, तो दिस इज वेयर यू कैन कंसल्ट मी पर्सनली. दिस इज फॉर प्रॉपर फिजिकल कंसल्टेशन. सो जैसे मैंने बताया, माय नेम इज डॉक्टर ओम लखानी एंड बहुत सारे आप में से सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड हैं. आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो ये हमारा ट्विटर का पेज है, ये फेसबुक का कनेक्शन है, और दिस इज माय ईमेल एड्रेस, माय पर्सनल ईमेल एड्रेस. सो अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. राइट. सो ये था आज का सेशन. बट जैसे मैंने बताया, हम 3 सेशन में, वी आर गोइंग टू हैव 3 सेशंस. सो आज के सेशन में हमने मेनली डायबिटीज को समझा, डायबिटीज क्या है उसके बारे में समझा, और मैं एक और बार आपको रिवाइज करके बताऊंगा. हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, जिसके अंदर हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट, जो मेन सेशन है, जिसके बारे में हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कैसे आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज ऑलरेडी है तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं टू प्रिवेंट डायबिटीज और टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज. तो ये सब हम देखेंगे. और तीसरे जो सेक्शन है, तीसरा जो हमारा सेशन होगा, उसके बाद उसमें हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस. राइट. सो आज के सेशन में मैंने बताया, आपको जानना है, आपको जो डायबिटीज, जो हम कॉमनली डायबिटीज जो हम डिस्कस करते हैं, वो होता है डायबिटीज मेलाइटस. उसमें से जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज जो होता है, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज. राइट. दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो एक टेस्ट आप जरूर से करवाएं, जिसको हम कहते हैं HbA1c. और अगर आपका HbA1c जो है, वो आपका टारगेट जो है, वो 7% के नीचे होना चाहिए. ये होना जानना जरूरी है. तो अगर आप ये मेंटेन कर पाते हैं, तो यू आर अंडर गुड कंट्रोल. एंड फाइनली वी आल्सो डिस्कस दैट आप अगर डायबिटीज अगर आपको है, अगर आप वांट अ सेकेंड ओपिनियन, you can always visit the website diabetesonline.in, and here we are trying to develop certain end-to-end diabetes management online, so that for convenience of your home, आप diabetes को manage कर सकते हैं. Right. So this is still a developing process, so we are still doing this, but ये एक हमारा initiative है to help patients with diabetes. So thank you for patient listening, and जैसे मैंने बताया, अगर आपको और कोई questions है, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस टुडे. थैंक यू डॉक्टर लखानी. आपने बहुत अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन किया. डॉक्टर सुकृत हमारे साथ हैं. तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब हमारे बीच में, तो हम गवर्नर साहब की और किशोर वर्मा जी जो हमारे मल्टीपल के चेयरपर्सन है डायबिटीज के, उनका, एंड विनीत गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इन तीनों के विचार सुनेंगे हम 1 by 1. एंड देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसको भी सब पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट राइट इन चैट बॉक्स. सो 1 by 1 वी कैन इनवाइट देम एंड दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन इन प्लेस की सभी लोग इकट्ठे बोले. आप अपने क्वेश्चंस को मैसेज बॉक्स में लिखिए, देन हम 1 by 1 सबको विद इन 1 or 2 minutes का टाइम देंगे बोलने के लिए. सो डॉक्टर स्मिथ प्लीज. Hello. Okay, Rajesh, thanks so much. And Dr. Lakhani, it's been a wonderful presentation, a wonderful overview of diabetes for common people. That's really wonderful. So I think Rajesh, should have questions pehle manga lo. Let's have queries first, and then we will ask the district people to comment on that. ये जिनको भी क्वेश्चंस है, वो एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए और चैट बॉक्स में बताइए. सो वी कैन कॉल देम 1 by 1 इन प्लेस कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोले.
तो जब आपको बुलाया जाए तभी आप आपको अनम्यूट कीजिए और तभी आप अपने क्वेश्चन पूछिए। सो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस पे जाए, मैं हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वीरेंद्र मेहता जी है। मैं चाहूंगा कि मेहता जी आप एक बार प्लीज आपको अनम्यूट कीजिए और अपनी इस सेशन के बारे में अपने व्यूज दीजिए। ओवर टू यू डॉक्टर मेहता। थैंक यू राजेश भाटिया जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लखानी का धन्यवाद करना चाहूँगा और वेलकम भी करता हूँ उनका हमारे डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। सच में आपने बड़ी अच्छी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, आपने बड़ी डिटेल में बताया और नोट भी कर रहा था क्या क्या की चीज़ हमें। लेकिन इसकी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हम जो रूटीन की हम चीज़ ले रहे हैं, हमें इसके लिए सबसे पहले तो अवेयर होना जरूरी है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो काफ़ी प्रिकॉशंस हम जब लेंगे तो उससे हम नेचुरली, अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो बचा जा सकता है। तो एक मेरा बस ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, एक क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे पास ये शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं या जो हम यूज करते हैं, ये कहाँ तक हमारी बॉडी के लिए बेटर है, या वो एक ठीक है नाम है कि हम शुगर ना लेके उसका अल्टरनेट ले रहे हैं, वो हमारे तो वो उसका कोई फायदा भी होता है या वो भी लॉस करते हैं हमारी बॉडी को? हाँ बिल्कुल, आई थिंक सर दैट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड हाँ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, हम शुगर फ्री के बारे में नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल डिस्कस डिटेल में करेंगे, बट टू आंसर योर क्वेश्चन अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, शुगर का कंट्रीब्यूशन डायबिटीज में खाली 10 to 20% होता है। जैसे मैंने बताया, डायबिटीज जो है वो 50% जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और 50% एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके अंदर भी जो शुगर का कंट्रीब्यूशन प्योर, आप जो ग्लूकोज शुगर जो खाते हैं, स्वीट खाते हैं, बहुत सारे कहते हैं ना स्वीट खाने से डायबिटीज होता है, गलत नहीं, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, it is true, but the contribution of sweet to diabetes is 10 to 20%, right? So बाकी जो 80% है वो और एक्सरसाइज ना करने से, स्ट्रेस के वजह से, बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। सो स्वीट का, we all have sweet tooth, right? In Gujarat and in North India, I think we all love our sweets, right? So sweet का बिल्कुल, so sweet का contribution होता है 100%, लेकिन वो 10 to 20% होता है। और रही बात शुगर फ्री के बारे में, सो देखिए, शुगर फ्री में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। देयर इज शुगर फ्री, फिर शुगर फ्री नेचुरा है, स्टीविया है ना, बहुत सारे उसमें है। अभी जो करंटली जो वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है, दे आर नॉट हार्मफुल। सो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं है बॉडी में। पुराने जमाने के जो ये शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते थे वो हार्मफुल होते थे, सैकरीन जो थे उसमें देयर आर प्रॉब्लम्स। पर जो करंट जो है शुगर फ्री या शुगर फ्री नेचुरा या स्टीविया, ये सब बिल्कुल सेफ है बॉडी के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये लेने से हमें डायबिटीज नहीं होगा, तो ये बात गलत है, बिकॉज जैसे मैंने बताया शुगर का कंट्रीब्यूशन 10 to 20% है, राइट? बाकी जो चीजें हैं जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, कुछ और डाइटरी मॉडिफिकेशन, दीज आर आल्सो कंट्रीब्यूटरी टू डायबिटीज, और इनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना शुगर का है। सो आप, अगर आपको स्वीट टूथ है और अगर आप शुगर का क्रेविंग ज्यादा होता है, तो उसके जगह पे आप शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि उसी से मुझे डायबिटीज प्रिवेंट होगा, और अगर ऐसी चीजें मार्केटिंग में अगर बताई जाती है कि ये खाने से आपको डायबिटीज नहीं होगा, तो ये बात गलत है, बिकॉज इनका इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग। एक कोई भी चीज है वो एक कारण से नहीं होता है, मल्टीपल कारण से होता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन और भी कारण है जो हमें ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब आपने। वैसे मेरे डैड को थी शुगर, लेकिन टच वो जो हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं है। मैं आई एम वेरी फाउंड ऑफ स्वीट्स, उसके बावजूद प्रिकॉशंस भी लेते हैं, और जिस एटमॉस्फेयर में मैं रहता हूँ बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ, और उसके बावजूद टचवुड मैं अभी शुगर से बहुत परहेज है। मैं 50+ हूँ, उसके बावजूद हमारी फैमिली सब सेफ है अभी शुगर से। और मैं सबसे, मेरा यही अनुरोध है कि बिल्कुल थोड़े प्रिकॉशंस लें। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी न किसी को हम अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई ना कोई हमारे को ऐसी चीज अडॉप्ट कर पाए उसको, और हम सेफ रह सकते हैं इसके लिए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन, थैंक यू सो मच यूर वैल्यूएबल वर्ड्स टू अवर लायंस। और सच एक अच्छा सेशन रहा आपका हमारा, और आगे भी आपसे सेवा लेते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू गवर्नर साहब। यस गवर्नर साहब, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं थैंक यू गवर्नर साहब। हमारे बीच में हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विनीत जी हैं। सो विनीत जी, आई रिक्वेस्ट यू टू कैरी ऑन। थैंक यू राजेश भाई। सबसे पहले तो डॉक्टर सुकृत शर्मा जी को बहुत बहुत
मुबारकबाद, क्योंकि इतना अच्छा हीरा वो गुजरात से ढूंढ के लाए हैं। तो हम इतने टाइम से डायबिटीज पे सेशन सुनते आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा लगा है कि डायबिटीज को समझा है हमने इतने सिंपल और प्लेन शब्दों में कि डायबिटीज क्या है, डायग्नोसिस के लेवल्स क्या हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि कंफ्यूजन होती है। मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ और कंफ्यूजन रहती है उसमें, कोई लैब दूसरा लेवल दिखा रहा है, कोई दूसरा दिखा रहा है। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों को लेवल अलग है, ये आज पता लगा। और एक जो ट्रिगर आपने वर्ड दिया है, इससे भी समझ में आया कि घबराने की कोई बात नहीं, जीन्स में है, पेरेंट को है, तो घबराने की बात नहीं है। लोग इतना डरा देते हैं लोग कि आपके पेरेंट्स को है तो आपको डायबिटीज हो ही जाएगी। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ट्रिगर जब तक ऑन नहीं होगा तो आप सेफ है, बस प्रिकॉशंस लेनी है। तो अब पता लग गया फर्स्ट सेशन में कि आगे आने वाले सेशन कितने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उनका वेट रहेगा। डॉक्टर साहब, हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपोलो हॉस्पिटल से भी हम लोग जुड़ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट नीरज लाल जी से रहेगी कि लायंस के साथ मिलकर जरूर वो कुछ ना कुछ काम करें, और हम लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपोलो का साथ हमको मिल रहा है तो उसका फायदा जरूर उठाएं। तो आने वाले सेशन के लिए आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Vinit ji. Thank you very much. Now I request to Rajesh, Dr. can I Sukrit. intervene? Just before we end, Vineet and attention for District Governor Saab ki we are doing this. I just want to show you a couple of pictures. हम लोग हाइब्रिड कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखें। ये यहाँ पे अवेयरनेस और रिस्क इवैल्यूएशन हो रहा है यहाँ पे, ये देखें आप। इसमें रिस्क इवैल्यूएशन और ऑनलाइन जो इवैल्यूएशन है वो सारा हो रहा है सारे लोगों का। और उसके अलावा आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड, एक से थोड़ा देर रास्ता आई एक सेकंड में थोड़ा रास्ता दे थोड़ा। सो वी आर डूइंग, अच्छा एनीवे, तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो एनीवे वी आर डूइंग अ ब्लड शुगर इवैल्यूएशन आल्सो, एकदम लास्ट के रूम के अंदर वी आर डूइंग ब्लड शुगर सबका। So it's like a hybrid camp that we are conducting. It's just for your information. I'm going to post it in the district very soon once we finish this. Raj, take over. Yes, thank you. It was very nice कि एक तरफ हम डायबिटीज अवेयरनेस का वेबिनार कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुकृत जो है वो लाइव कैंप में है इस समय डायबिटीज की, और आप सब लोगों को दिखाया कि इस तरह की हाइब्रिड कैंप, लाइक डॉक्टर सुकृत इज डूइंग कैंप इन समथिंग लाइक where Dr. Sukrit you are in? I'm in Uttarakhand. Yeah, वो दिल्ली से वहाँ जाके, उत्तराखंड दिल्ली से जाके वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। So why we not do in our own cities, our own areas where we live? So बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सुकृत आपने ये आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। So अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिसका भी जो क्वेश्चंस है one by one they can unmute themselves and speak one by one. So इससे पहले कि मैं आप क्वेश्चन बोले, यहाँ पे एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओम लखानी जी आपके लिए, कि जो ये ग्लूकोमीटर है इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो कितनी मतलब ऑथेंटिकेटेड है, लाइक उसको माने अगर हम कई बार क्या होता है कि मोस्टली हम घर पे टेस्ट करते हैं, लोग आजकल वो ग्लूकोमीटर घर पे रखते हैं और फिर वो जाके वहां पे टेस्ट करते हैं तो वेरिएशंस आता है दोनों में। सो कितना उसको मान सकते हैं, कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है? ओके, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो ग्लूकोमीटर होता है, वो ग्लूकोमीटर है वो कैपिलरी ब्लड को चेक करता है। अगर आप देखेंगे, आप नीडल से प्रिक करते हैं और फिर उसमें से आप ब्लड का चेक करते हैं, जबकि आपने देखा होगा जब आप लैब में जाते हैं तो वो आपके वेन्स में से ब्लड लेते हैं, जिसको वीनस ब्लड कहते हैं। सो हम दो अलग चीजें चेक कर रहे हैं, कैपिलरी ब्लड अलग होता है, वीनस ब्लड अलग होता है। तो ये जायज है कि दोनों का वैल्यू है उसमें अंतर आएगा, राइट। एट द सेम टाइम आप टेक्नोलॉजी से हैं तो मैं ये बताऊं, इसमें जो आज के मॉडर्न ग्लूकोमीटर्स होते हैं तो उसमें वो कुछ एल्गोरिदम्स डालते हैं जिससे वो जो कुछ कैलकुलेशंस करके वो जो वैल्यू दिखाते हैं वो दे ट्राई टू एडजस्ट दैट वैल्यू व्हिच इज क्लोज टू द वीनस ब्लड, राइट। ओके, एट द सेम टाइम सो ये एक कोशिश की जाती है कि जो आपके ग्लूकोमीटर का जो रिजल्ट है और वो ब्लड जो आप लैब से कराते हैं दोनों का रिजल्ट सिमिलर हो, वो करने की कोशिश की जाती है, लेकिन 100% कभी नहीं होता, राइट। सो वेरी रेयर होगा कि जब आप बहुत सारे पेशेंट ना जाते हैं लैब में जाते हैं और लैब के बाहर पहले ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, फिर ब्लड सैंपल देते हैं टू चेक के दोनों में कितना वेरिएशन है, बहुत पेशेंट करते हैं। बट जैसे मैंने बताया, एक हम दोनों में अलग अलग चीजें चेक कर रहे हैं, और एक ग्लूकोमीटर के अंदर एल्गोरिदम होता है जिससे वो कैलकुलेट करके थोड़ा
वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है so that it comes close to the venous blood sugar. At the same time, variation is always going to happen, or generally 10 to 20% variation can be expected, right? For example, अगर आप लैब से आपने अगर टेस्ट कराएं, अगर आपका ब्लड शुगर लैब में आता है 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ग्लूकोमीटर का रीडिंग 90 टू 110 के बीच में जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेंज के अंदर आपका वैल्यू आएगा, राइट? कभी कभी डिपेंड्स ऑन द कंपनी, अगर आपका ग्लूकोमीटर अच्छी कंपनी का है तो वो इट विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट, और अगर आपका ग्लूकोमीटर कुछ अच्छी कंपनी नहीं है तो समटाइम्स द वैल्यू कैन गो लिटिल बिट मोर देन 10%, समटाइम्स 20% जितना भी वेरिएशन आ सकता है. बट अगर कोई लैब का वैल्यू और आपका ग्लूकोमीटर का वैल्यू 20% से ऊपर है डिफरेंस, तो आपको ग्लूकोमीटर चेंज करने की जरूरत है. या तो आप इसको रिप्लेस करवाएं या तो फिर आप नया ग्लूकोमीटर खरीदें. जैसे अगर आपने लैब में आपने वैल्यू कराया 100 और आपका ग्लूकोमीटर दिखाता है 70, तो ये हो गया मोर देन 20%, दैट इज ऑलमोस्ट 30% डिफरेंस आ गया. तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोमीटर आपका बिल्कुल गलत है, आपको ग्लूकोमीटर चेंज करने की जरूरत है. या तो आप उसको चेंज करवाएं या तो आपने जिनसे खरीदा उनसे बोले कि अगर वारंटी पीरियड में है तो इसको रिप्लेस करके दें, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा. आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि लैब की वैल्यू और ग्लूकोमीटर की वैल्यू 100% सेम आएगी. एट द सेम टाइम ग्लूकोमीटर का पर्पस इज मेनली फॉर ट्रैकिंग. वो एक चीज है जिसको हम ट्रेंड जो है वो हम आप पहचाने और उसको आप ट्रैक करें. अगर आप इफ यू आर लुकिंग एट एक्यूरेसी, तो ग्लूकोमीटर मे नॉट बी एक्यूरेट. सो अगर आप एक्यूरेसी जानना चाहते हैं तो इट इज बेटर कि आप लैब में जाके रिपोर्ट्स कराएं, वो ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस है. बट ग्लूकोमीटर जो है वो एक ट्रेंड को पकड़ने के लिए जरूरी है. वो एक तरह से जैसे अगर मैं क्रिकेट का एनालॉजी देना चाहूँ तो सब जानते हैं जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट सही क्रिकेट है, राइट? इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एनी क्रिकेटर. बट द सेम टाइम हम T20 क्रिकेट भी देखते हैं, चाहे वो बहुत शॉर्ट है, बट एक तरह से हमें आइडिया आ जाता है कि भाई कौन सी टीम अच्छी है. बट जरूरी नहीं है कि अगर T20 क्रिकेट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल क्रिकेट. वैसे ही ग्लूकोमीटर जो है वो एक ट्रेंड को पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज यूजफुल, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू. अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप लैब से रिपोर्ट करें. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर ओम. So thank you very much. We are not selling something and we are not promoting something here, but can you suggest some brands, like which one is the best? मैं बिल्कुल, this is, I think it's important to understand. Will not promote any brand, but इन्होंने कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सब ग्लूकोमीटर्स को कंपेयर किया देखने के लिए कि कौन सा ग्लूकोमीटर ज्यादा एक्यूरेसी है ना. इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं. तो उन्होंने कुछ टेस्ट, उनको जो भी अवेलेबल मार्केट में ब्रांड्स थी, उन्होंने सब ग्लूकोमीटर्स को लिया और उन्होंने चेक किया कि ग्लूकोमीटर कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है. सो ये एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर वर 2 or 3 ग्लूकोमीटर्स व्हिच टर्न्ड आउट टू बी वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी. बहुत ही एक्यूरेट थी. एक कंपनी जो है इट इज कॉल्ड कॉन्टूर, राइट? कॉन्टूर व्हिच इज नाउ मैन्युफैक्चर्ड बाय पैनासोनिक. सो पैनासोनिक का ग्लूकोमीटर होता है कॉन्टूर करके. तो कॉन्टूर ग्लूकोमीटर है वो करंटली वर्ल्ड वाइड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्यूरेट ग्लूकोमीटर. दूसरा, अगर आप इंडिया में भी अवेलेबल है, कुछ और ब्रांड्स अगर देखें तो एक्यूचेक करके होता है which is quite accurate, and there is another company called Abbott which makes a glucometer called Optium Freestyle. तो ये 3 ग्लूकोमीटर जो है हम हमारे खुद के प्रैक्टिस में यूज करते हैं, and we recommend to our patients also, because we have found that these 3 glucometers from different companies are extremely accurate. और ये जो ग्लूकोमीटर्स हैं वो जनरली हम इसको ज्यादा रिलाई करते हैं. तो इसमें से अगर आप कोई खरीदना चाहें तो ये इसमें से खरीदें. बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर ब्रांड्स आल्सो व्हिच मे नॉट बी इनएक्यूरेट. आई एम नॉट सेइंग दैट बाकी जो है खराब है, बट अगर आप खरीदते हैं तो वो बेटर है कि आप कभी बीच में चेक कर लीजिए कि आप कितनी एक्यूरेसी है. अगर बहुत वेरिएशन आता है तो बिल्कुल आप चेंज करें. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब. हमारे बीच में दिनेश राजपाल जी हैं जिनका ये क्वेश्चन था, एंड सरप्राइजली ही इज द मैनेजर इन एबट, हरियाणा देखते हैं वो पूरा. तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि लोग जो हम ये टेस्ट कर रहे हैं घर पे, जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो मतलब कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए लाइक ग्लूकोमीटर से? जी 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 बिल्कुल. सो अगर आप इंसुलिन पे हैं, जैसे आप अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप डेली चेक करें, राइट? क्योंकि इंसुलिन ज्यादा पोटेंट चीज है. तो हम जनरली हमारे पेशेंट्स को कहते हैं कि आप डेली मॉर्निंग का फास्टिंग शुगर चेक करें, एटलीस्ट दिन में एक बार
रोज चेक करें। लेकिन अगर आप इंसुलिन पे नहीं है, आप मेडिसिन दवाइयां ले रहे हैं या तो फिर आप लाइफस्टाइल मेजर्स पे हैं, तो हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक इज व्हाट वी सजेस्ट, कि आप ब्लड शुगर को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मिनिमम चेक करें। और अगर आप हफ्ते में एक बार चेक करते हैं तो आप फास्टिंग शुगर, मॉर्निंग में उठते ही भूखे पेट शुगर चेक करें, और खाने के बाद का शुगर भी चेक करें, दोनों ही चीजें चेक करें। सो अगर आप इंसुलिन पे नहीं हैं, आप दवाइयां ले रहे हैं, तो आप हफ्ते में एक बार मिनिमम आपको चेक करना जरूरी है। इट्स लाइक अ हैबिट, आप अच्छी हैबिट अगर करेंगे, अगर आप हमें कैसे पेशेंट्स पसंद है जो खुद के केयर में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट, जो खुद की जो ट्रीटमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे लिए भी अच्छे पेशेंट है, कि हमें पता है कि हम इनसे अच्छी तरह से वी कैन कम्युनिकेट, राइट। सो अगर आप घर पे डायबिटीज हैं, आप हफ्ते में एक बार शुगर चेक करते हैं, आप उसको नीटली रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, और अगर आपके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो फिर आप डॉक्टर में आल्सो बी एबल टू गिव यू बेटर ट्रीटमेंट इफ ही हैज ऑल द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है और अगर मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप हफ्ते में एक बार फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर को चेक करें। अगर आप इंसुलिन पे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप डेली चेक करें। Okay, thank you, Dr. Saab. There is one more question. Like, I am not from the medical background, so आप इसको समझ पाएंगे better. It's sometimes doctor puts us on triple drug combination to treat blood glucose. It's good, or treat diabetes with high dose monotherapy is good. Like, आप उसको मैं बिल्कुल जी, we are going to have a dedicated session on treatment. तो हम ट्रीटमेंट के बारे में ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या मेडिसिन होती हैं, उनके क्या फायदे गैर फायदे, डिस्कस एवरीथिंग इन अ लेटर सेशन। बट मैं अभी फिलहाल टू आंसर दिस क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, केस बाय केस बेसिस के लिए। कुछ केसेस में मोनोथेरेपी, इंडिविजुअल ड्रग्स आर बेटर, बट कुछ सिचुएशन में जैसे पेशेंट का शुगर काफी स्टेबल है, तो हम डबल या ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे प्रैक्टिस में, इन माय प्रैक्टिस, आई डोंट यूज ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन, राइट। मैं जनरली नहीं प्रेफर करता हूं। मैं मेरे पेशेंट्स को जनरली या तो मोनोथेरेपी, या मतलब इंडिविजुअल ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो फिर ड्यूअल, मतलब 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन जनरली हम प्रेफर करते हैं। ट्रिपल ड्रग जनरली मेरी प्रैक्टिस में मैं नहीं प्रेफर करता हूं, लेकिन अगर आपको ये प्रिस्क्राइब्ड है और आपका ब्लड शुगर अच्छे से मेंटेन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट हम इसको बिल्कुल डिटेल में फ्यूचर सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट के ऊपर हम एक सेकंड जो इसी जो वेबिनार सीरीज का सेकंड सेशन है, डायबिटीज वेबिनार सीरीज का, वो हम सेकंड सेशन में हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आप पहले से अगर हमें भेज पाए, या इवन डॉक्टर सुकृत को भेज पाए, सो वी कैन फॉरवर्ड टू डॉक्टर ओम एंड ही कैन कवर ऑल दोज थिंग्स इन देयर सेशन। So now I request everyone, like किसी को भी कोई क्वेश्चन है बिफोर डॉक्टर सुकृत इस सेशन को वाइंड अप करे, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, they can unmute themselves and ask their question direct from Dr. Lakhani. Or any other, if want to speak something, they can. Rajesh, there are no questions, so maybe as discussed, अगर मेहता जी हैं तो he can propose a vote of thanks. मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, डॉक्टर सुकृत, डॉक्टर लखानी और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेहता जी और विनीत जी। ये बहुत अच्छा सेमिनार है। मैं आप सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, everybody. Neeraj, thanks a lot. Dr. Om, thank you so much. थैंक यू डॉक्टर सुकृत, ये सब आपकी एफर्ट से हुआ है, और ऐसे सेमिनार आप करते रहें और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। Right, thank you, धन्यवाद, thank you so much. Bye bye. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. Okay जी, bye bye. Neeraj, bye. Bye bye. Thank you to everyone for joining this session. Now we are going to close this session, so we are coming with more sessions very soon. Okay, bye bye to everyone.